Good evening, friends. So, today we will start our first topic of CMA Foundation course. Our first syllabus is Business and Financial Accounting. There is only 4 subjects in our CMA Foundation. The first module subject is Business Accounting, Business and Financial Accounting. You can say cost accounting also, but more and less similar. It's a financial accounting. So, first of all, let introduce myself. My name is Satyam Tiwari. I am a qualified chartered accountant. In addition, additionally, qualified company secretary and qualified cost accountant also. I have recently completed my cost accounting 6 months ago. So, without any delay, let's start our first syllabus or first topic. This is accounting. Let's go through first topics of accounting. Okay. These are the first topic. These are initially I'm directly referring the institute material. Our base of entire study will be institute material only. You can see here topic accounting fundamentals, accounting for special transactions, final accounts, everything else. Our entire topic will be this only: accounting fundamentals, module 1, module accounting for special transaction, consignment, joint ventures, bill of exchange, module 3, preparation of final accounts, module 4, fundamental of cost accounting. So let's start our first topic, that is financial fundamentals of accounting. Accounting fundamentals, unit 1. So these are the brief summary of what are we going to learn here. Okay. So our destination is so big. We will divide entire this syllabus in small part of videos of small sections. Okay. Let's start our first basic concept. Is introduction to financial accounting. Okay, I told you I will referring going. I only going to refer institute material only. So I will not going to refer any material, because the base for every exam institute material only. Trust, I have cleared my all CMA levels based on institute material only. So I will only also suggest to refer institute material. We cannot avoid the institute material. So let's start. Introduction of financial accounting. So our accounting first, why accounting is very important. After doing your 10th or 10th, you got lots of sections कि कॉमर्स चुनूँ, साइंस या आर्ट्स. तो जिसने भी कॉमर्स चुना है तो उसने सोच के रखा हुआ कि अकाउंटिंग इज अ पार्ट एंड पार्ट्स ऑफ लाइफ, मीन्स एंटायर. You will find everywhere. Accounting will find everywhere. In every business, every units, every part of the area of life, you will find accountings. In every company, you will find accountings. So, scope of accounting is very vast. Okay. So, first, we'll start with definition of accounting. What is accounting? In books, we describe what is accounting is. Here, I've highlighted the things. Art of recording, classifying, summarizing in significant manner or in terms of money, transaction, events which are in part at least of financial characters, or interpreting the results. These are the bookies definitions. Let's learn in our layman language. Basically accounting क्या है? तुम्हारा सपोज तुम्हारा खुद का ही एग्जाम्पल ले लो. तुम जो भी तुम्हारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, मतलब तुमने कुछ बाय किया है, सेल किया है, कुछ सपोज कुछ आईफोन ख़रीदा है, या तुम्हें कुछ पेमेंट रिसीव हुआ है, सैलरी आई है, उस सब को जो हम उसको
रिकॉर्ड करते हैं उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में नोटबुक या फिर किधर भी रजिस्टर्ड मतलब मेंटेन करते हैं और फॉर पर्टिकुलर पीरियड मंथ लेवल ईयरली लेवल, उसे हम अकाउंटिंग बोलते हैं सिंपल टर्म्स में। उसके बेसिस ये सिंपल लेमन लैंग्वेज है अकाउंटिंग का डेफिनेशन। ओके, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट पार्ट। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग? ओके, अकाउंटिंग है तो उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब एडवांटेज क्या है, मतलब हम मुझे अकाउंटिंग क्यों करना है, मतलब अकाउंटिंग से मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है सामने वाले यूजर्स को। लेट्स गो वन बाय वन। ओके, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज अकाउंटिंग से मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द यूज़र फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग, मतलब अकाउंटिंग से यूज़र्स को रैशनल डिसीजन मेकिंग ये कैसे हेल्प करेगा। सपोज लेट्स मेरा एग्जांपल लो, जैसे मुझे सैलरी रिसीव हुआ, कितना मुझे इनकम मिला, मैं कितना एक्सपेंस किया मैंने पर्टिकुलर मंथ में, कितना मेरे पास बैलेंस बचा है कैश, बस मैंने क्या क्या ट्रांजेक्शन किया फॉर पर्टिकुलर ईयर पास्ट ईयर। ऑन दैट बेसिस आई कैन फोरकास्ट माई फ्यूचर एक्सपेंस इनकम्स एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। वो डेटा मुझे कहाँ से मिलेगा, अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। इसलिए फर्स्ट एग्जांपल एडवांटेज बोला है कि ये यूज़र रैशनल डिसीजन, उनके बेसिस पे तुम क्लियर एंड प्रॉपर डिसीजन ले सकते हो। मुझे कितना फंड्स लगने वाला है कोई एक्टिविटी करने के लिए, मैं पास्ट हिस्ट्री क्या था, वो डेटा हमें कहाँ से मिलता है, अकाउंटिंग से मिलता है। अभी सेकेंड एडवांटेज है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ओके, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग ये सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन क्यों बोला गया है कि ये एकदम सिस्टमैटिक मैनर में मंथ वाइज यू विल एवरी डेटा तुम्हें अवेलेबल रहता है। ये पर्टिकुलर मंथ में सब कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुआ, नेक्स्ट मंथ में कितना होगा। सपोज ईयरली लास्ट ईयर मेरा कितना था, कितना खर्चा हुआ, कौन से हेड में कितना ज़्यादा खर्चा हुआ। जैसे सपोज मेरा एडमिन आइटम या फर्नीचर में पर्टिकुलर कितना खर्चा हुआ, डिटेल लेवल पे हमें सिस्टमैटिक पीरियड वाइज आइटम लेवल पे हमें डिटेल्स मिलता है अकाउंटिंग के अंदर। इसलिए हम उससे बोलते हैं कि सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ऐसा नहीं है कि तुम जो भी चाहो, जैसे कि तुम बोलो अरे मेरा लास्ट मंथ मेरा कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना रेवेन्यू था, अकाउंटिंग तुम्हें आंसर कर देगा। इसलिए हम उससे बोलते हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। थर्ड एडवांटेज क्या है, ऑब्जेक्टिव, अ सर्टेन रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अ सर्टेन रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। रिजल्ट यहाँ पर रिजल्ट मतलब प्रॉफिट और लॉस। ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है उस पर्टिकुलर पीरियड में, हमें कैसे पता चलता है, अकाउंटिंग के थ्रू। अकाउंटिंग हेल्प करता है, अकाउंटिंग्स बुक्स ऑफ अकाउंट की लास्ट ईयर मेरा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, या लास्ट मंथ मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, वो हमें अकाउंटिंग के थ्रू हेल्प मिलता है फाइंड आउट करने के लिए। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, ए सर्टेन पोजीशन ऑफ बिजनेस, मतलब अकाउंटिंग मुझे हेल्प करता है कि आज के दिन एज ऑन 31 मार्च 2025 मेरा क्या असेट है, क्या लाइबिलिटीज़ है, मेरे कितना मेरा एक्सपेंस हुआ है, कितना इनकम हुआ है, उस पर्टिकुलर डेट पे मुझे अकाउंटिंग हेल्प करता है। मेरे कितने असेट्स है, कितने लाइबिलिटीज़ हैं उस दिन पे ओनर्स के, वो एसर्टेन करने पर्टिकुलर डेट पे वो हेल्प करेगा अकाउंटिंग। पोजीशन मतलब क्या, बैलेंस शीट डेट पोजीशंस। जो फर्स्ट आपने कहा P&L, वो मेरा ट्रांजैक्शन प्रोविजन, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट एंड लॉस बताता है। फोर्थ मेरा कितना असेट्स है, कितने लाइबिलिटीज़ हैं, वो मुझे अकाउंटिंग हेल्प करता है फाइंड आउट करने में। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट हेडिंग, सॉरी, फंक्शंस ऑफ अकाउंट्स, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। हमारे फंक्शंस क्या हैं, जैसे फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। हमने ये रिपीटेटिव है, ऑब्जेक्टिव्स में हमने तुम फाइंड आउट करोगे कि हमने जो डेफिनेशंस और ऑब्जेक्टिव पढ़ा उसमें ये सब
रिपीट हो रहे हैं स्मॉल स्मॉल पार्ट में, बट स्टिल विल गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग. फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इवेंट्स. मतलब मैंने क्या परचेस किया, क्या फर्नीचर, सपोज फॉर एग्जांपल कितना एक्सपेंस हुआ, मैंने कहाँ कौन से इवेंट, मतलब कौन से एक्टिविटीज़ में मैंने कितना खर्चा किया, वो अकाउंटिंग मुझे बताता है. सेकेंड पार्ट क्या है? मेजरमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स. मेजरमेंट यहाँ पर मतलब मीनिंग है उसका वैल्यू कितना है, मतलब मैं कोई भी एक्टिविटीज़ किया, ट्रांजैक्शन किया, उसका वैल्यू कितना था, कॉस्ट कितना लगा मुझे, वो मुझे अकाउंटिंग हेल्प करता है फाइंड आउट करने में. थर्ड है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. एज मैंने पहले भी बताया, अकाउंटिंग हमें उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है. पर्टिकुलर मंथ में मेरा कितना खर्चा हुआ, फ्यूचर में सपोज तुम्हें बैंकर्स को अगर लोन लेना है तो उसमें लास्ट वो पूछेगा इसका मुझे डिटेल्स दो. अकाउंटिंग तुम्हें तो आइडिया याद नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन, तुम अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट को देखो, रिफर करोगे कि मैंने अरे ये पर्टिकुलर डेट पे मैंने क्या ट्रांजैक्शन किया था, क्या एक्टिविटीज़ हुआ, वो मुझे अकाउंटिंग हेल्प करता है. नेक्स्ट है क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस. मैं पहले बताया वो हमारे अकाउंटिंग पूरे एंटायर सपोज पूरे ईयर को हमें समराइज करने में, मतलब P&L लेवल, हेड लेवल में रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है. मतलब ऐसे मेरा कितना सेल्स हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, मेरा मटेरियल में कितना खर्चा हुआ, एडमिन आइटम, सैलरी, एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब में P&L आइटम्स में हेल्प करता है रिकॉर्डिंग में, पर्टिकुलर हेड में रिकॉर्ड करता है. पहले हमने बताया रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, मैंने बिजनेस में मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, वो मेरा अकाउंटिंग हेल्प करता है फाइंड आउट करने में. मेरा एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स ऑफ पोजीशन टू हेल्प, मतलब मेरे एज ऑन पर्टिकुलर डेट मेरे कितने लाइबिलिटीज़ हैं, कितने एसेट्स हैं, वो मुझे हेल्प करता है अकाउंटिंग फाइंड आउट करने में. यहाँ पर तुम देख सकते हो. ओके, नाउ कम्युनिकेटिंग सच ट्रांजेक्शन टू यूज़र्स. मतलब अभी मेरे जो ट्रांजेक्शन्स थे, मतलब ये यूज़र्स को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है. मतलब मेरे एक्सटर्नल बैंकर्स पूछेगा तुम्हारा कितना लायबिलिटी है, कितना एसेट्स है, क्या प्रॉफिट हुआ है, मैं ये उसको बुक्स ऑफ अकाउंट दे दूँगा, भाई तू ये रिफ़र कर, इसमें सब कुछ है, मुझे हेल्प करेगा. इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चाहिए, या फिर सेबी को चाहिए, किसी एक्सटर्नल इंटरनल पार्टीज़, मेरे रिलेटिव्स, मैं किस फ्रेंड्स को दे दूँगा, तो उनको पता चल जाएगा मेरा कितना इनकम था, मेरा कितना एसेट्स है एज ऑन डेट, वो सब हेल्प करता है अकाउंटिंग. यू कैन सी कितने सारे बेनिफिट्स हैं मेरे पास अकाउंटिंग के. नाउ we will go some bifurcations of accountings, like some terminologies for accounting. Bookkeeping and accountancy क्या होता है? Suppose here you can see the definition of bookkeeping. Bookkeeping is a science, art of correctly recording in books of account all those business transactions that result in transfer of money and money's worth. मतलब सिंपल क्या है बुककीपिंग क्या है? कोई भी ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स हो गया, किसी कोई खर्चा की एक्टिविटीज़ को जो मनी रिलेटेड है, मनी फाइनेंशियल टर्म्स में, उसको रिकॉर्डिंग, आर्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इज अ बुक कीपिंग, सिंपल, नथिंग एल्स. बट अकाउंटेंसी क्या है? Accountancy यहाँ पर लिखा है accountancy is discipline that incorporates certain principles, rules of accounting. It refers to entire body of theory and practice of accounting in concept wider than accounting. Simple, accountancy क्या है? Bookkeeping is a way of recording the transaction, event, activities. Accountancy जो rules हम follow करते हैं, debit, credit, policies जो होते हैं accountancy के, in items, income, expense, सब वो अकाउंटेंसी का पार्ट होता है. बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी. ओके, अकाउंटेंसी इज ब्रॉड टर्म है. यहाँ पर तुम देख सकते हो, पहले बुक कीपिंग आता है, उसके बाद अकाउंटिंग आता है, फिर अकाउंटेंसी आता है. अकाउंटेंसी इज ब्रॉड टर्म. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क, अंडरस्टैंडिंग द 4 framework of accounting, that is conceptual, legal, institutional and regulatory. फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग में हियर यू कैन सी आई एम हाईलाइटिंग द थिंग. फ्रेमवर्क refers to structure that form support frame for something in
in particular set of rules, ideas, beliefs that you use in order to deal with problem, to decide what to do. In accounting, framework provide common set of rules, guidelines that is used to measure, recognize, present, disclose the information appearing in any entity's financial statement. Framework मतलब ये set of guidelines और principles है accounting, जैसे कि इनकम, एक्सपेंस में जनरल आइडियाज़ है, अरे हाँ लेवल है, अगर हाँ मैं जैसे एक्सपेंस हुआ, हाँ इधर इनकम में जाएगा, अगर कोई मेरा रेवेन्यू आइटम है, जैसे मेरे सैलरी आया तो ये इनकम में जाएगा, मैंने कोई सैलरी दी, खर्चा किया मैंने, तो ये एक्सपेंस के हेडिंग में जाएगा. ये सेट ऑफ फ्रेमवर्क है, मेरा प्रॉफिट लॉस स्ट्रक्चर एकदम फिक्स्ड अकाउंटिंग का. सेट ऑफ गाइडलाइंस, वो जो स्ट्रक्चर फॉलो करना है वो अकाउंटेंसी के लिए. तो वी विल follow that four framework of accounting in part and part. First is conceptual framework. What is conceptual framework? Conceptual framework is body of interrelated objectives and fundamentals. Objective of identifying goal, purpose of financial reporting, and fundamentals and underlying concepts. Underlying concept that help to achieve those transactions. Concept provide guidance selecting transactions, event, circumstances to be accounted for, how they should recognize and measured, how should be summarized, reported. Basically conceptual framework ये set of principles है. मतलब जैसे कोई ट्रांजैक्शन है, तुमने किधर ट्रिप मारा, मतलब किधर कोई ट्रैवल किया इधर से, उसको ये हमारा खर्चा है, उसको हमें रिकॉर्ड करना है, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी को हमें रिकॉर्ड करना है क्या नहीं, वो हमारा एक्सपेंस है क्या नहीं, वो सेट ऑफ प्रिंसिपल और गाइडलाइंस वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है अकाउंटेंसी. सेकेंड है लीगल फ्रेमवर्क. इसमें क्या है, बिजनेस आर ऑफन कंट्रोल बाय वेरियस स्टैट्यूट्स, फॉर्म, लीगल, लॉट्स ऑफ लीगल पार्टीज, इलेक्ट्रिसिटी, लॉट्स ऑफ लीगल एक्ट्स, कंपनीज, CSR शेड्यूल्स. इन शॉर्ट लीगल फ्रेमवर्क में क्या होता है, सिंपल, जैसे कि कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट होता है, LLP के लिए, फर्म के लिए पार्टनरशिप एक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट एक्ट डिफाइन किए हैं. वो डिफरेंट एक्ट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस वो डिफाइन करते हैं कि कंपनी को कैसा अपना P&L बैलेंस शीट मेंटेन करना है, कौन से फॉर्मेट में उसको बनाना है. ये लीगल फ्रेमवर्क डिसाइड करता है अकाउंटेंसी का पार्ट. सिंपल यही बताना चाहता है. सेकेंड लीगल फ्रेमवर्क मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करता है. जैसे कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 है, ये कंपनी को फॉलो करना है, ये फॉर्मेट ही फॉलो होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अपने मन मर्जी का कोई फॉर्मेट हम यूज़ करें. भले प्रोप्राइटरशिप पे ये जनरली होता है. इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी उनका फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया है लीगल फॉर्मेट फ्रेमवर्क में. नेट इज इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क. अभी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में कैसे हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्ट्स एंड हैं, वो तो जनरल फॉर्मेट है कि फॉलो करना है पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के लिए, लेकिन एक बॉडी होती है. जैसे हमारे पास अकाउंटेंसी इज़ ब्रॉड टर्म. अभी जैसे कि इन रेवेन्यू एक्सपेंस को कैसे अकाउंट करें, हमारे क्या पॉलिसीज़ होना चाहिए. जैसे कि हमारा एक बॉडी होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो हमारे अकाउंटेंसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कि हमें कैसे हम अकाउंटेंसी में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन. अभी डेप्रिसिएशन, एसेट का डेप्रिसिएशन हम 8 वेज में मेथोलॉजी है निकालने के लिए. कॉमन्स आर WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, SLR मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, यूनिट ऑफ सम ऑफ डिजिट मेथड, लॉट्स ऑफ मेथड है. तो कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए वो हमें इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में बताते हैं. ये जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री है, स्टॉक को तुम कैसे वैल्यू करोगे, LIFO मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज, ये 3 मेथड्स हैं. उसमें से क्या हमें फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, वो हमें इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में प्रिस्क्राइब होता है. तो लास्ट है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, फोर्थ. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कैसे हो गया, हमारे कॉमन IRDA, जैसे कि हमारे सेक्ट. अभी तुमने लीगल फ्रेमवर्क में देखा होगा, तुमने एक्ट्स प्रिस्क्राइब करते हैं. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जो रेगुलेटर्स होते हैं, हर एरिया सेक्टर्स के रेगुलेटर्स होते हैं. जैसे कि
स्टॉक एक्सचेंज के सेबी है, सेबी होता है रेगुलेटर्स। बैंकों के लिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस के लिए आईआरडीए। टेलीकॉम के लिए टेलीकॉम अथॉरिटी। जो उन सेक्टर्स का भी, रेगुलेटर्स का भी हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। मैं क्या नॉर्म्स रहेगा, क्या कॉन्डेंसी है, वो फ्रेमवर्क भी हमें फॉलो करना पड़ता है। यह रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ये कवर होता है। नाउ आई विल गो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमारे कितने फॉर्म्स हैं, मतलब अगर आज तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है सपोज, तो तुम कौन से वेज में बिजनेस कर सकते हो? आइदर प्रोप्राइटरशिप में जा सकते हो, पार्टनरशिप में जा सकते हो, कंपनीज ओपन कर सकते हो, या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है ये जनरल, या फिर बॉडी ऑफ जनरल